السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان قاضی سپیکس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے ایران اسرائیل کی حالیہ کشیدگی میں ایران کی کیسے مدد کی اور ایران نے اس مدد کے بعد پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران نے پاکستان کا شکریہ کیوں ادا کیا اور پاکستان نے کیا ایران کی اس جنگ میں مدد کی، اور اگر یہ مدد تھی تو کیا یہ خفیہ مدد تھی یا کھلے عام مدد کی گئی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم سے مل سکے۔ تو دوستو، ہم اس جنگ کی پس منظر اور آغاز کی بات کرتے ہیں۔ اپریل 2024 میں پہلی دفعہ ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل اور ڈرون اٹیک کیے، اور یہ ڈرون اور میزائل عراق، شام اور یمن کی ٹیریٹری سے پھینکے گئے تھے۔ ان ڈرونز کا اسرائیل نے بھی ریٹیلیٹ کرتے ہوئے سختی سے جواب دیا، لیکن دوستو بات یہاں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اسرائیل کی سرزمین کے اوپر ایران نے باقاعدہ ڈرون اور میزائل پھینکے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایران کی طرف سے ہتھیار ڈرونز کے ذریعے اور میزائلز کے ذریعے وہاں اسرائیل میں پھینکے گئے۔ اور دوستو یہاں بات یہ بھی ہے کہ اس سارے نقطے میں پاکستان کا کردار کیا تھا، اور ایران کے حملے میں پاکستان غیر اعلانیہ کردار کیسے رہا۔ ہم اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات بھی کرنا چاہیں گے کہ اس جنگ کے بعد جو 14 دن جنگ رہی، جس کو اسرائیل نے اٹیک کیا جب ایران کے اوپر، اور اس کے مین لیڈرز جس میں نیوکلیئر سائنٹسٹ اور اس کے آرمی چیف کے ساتھ ساتھ دوسرے جرنیل اور دوسرے سائنٹسٹ جو تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کو شہید کیا گیا۔ اور اس حملوں میں لگاتار 14 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں سینکڑوں لوگ دونوں طرف سے شہید ہوئے، دونوں طرف سے مارے گئے۔ ایران کے لوگ بھی شہید ہوئے اور اسرائیل کی بھی بیش بہا تباہی ہوئی۔ اس کا تل ابیب اور حائفہ شہروں کی ایرانی میزائلوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور جب اس جنگ کی شدت کو نہ برداشت کرتے ہوئے اسرائیل نے اپنے دوست، اپنے پارٹنر امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی کہ آپ بھی اس جنگ کا حصہ بنے۔ اور آپ جانتے ہیں دوستوں کہ اسرائیل کا کلیم تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے اور ہم مشرق وسطی میں کسی نیوکلیئر سٹیٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر میزائل پھینک کر ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے اپنی نیوکلیئر سائٹس 50 سے 100 میٹر زیر زمین بنائی ہوئی تھیں، جن کو اسرائیلی میزائل تباہ کرنے کے لیے کوشش تو کرتے رہے، لیکن اس حد تک ڈیمیج نہیں کر سکے جس حد تک اسرائیل کی خواہش تھی۔ تو اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلایا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے B-2B بمبارز کے ذریعے، اپنی فورسز کے ذریعے میزائل پھینکے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر ایران کی۔ پھر جا کر یہ جنگ بند ہوئی اور پھر مذاکرات کی طرف گیم چلنے لگی۔ لیکن دوستو بات یہاں یہ ہے کہ اس 14 دن کی جنگ میں پاکستان کا کردار کیا رہا اور پاکستان نے ایران کی کس طرح مدد کی۔ ایران کی طرف سے شکریہ کا ٹرینڈ چلایا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی حلقے اور وزارت خارجہ کے حکام کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پاکستان کو اپنا برادر پڑوسی ملک سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمارے دفاعی اقدامات میں ہماری خاموش حمایت کی۔ اس بیان کے فوراً بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو اب وزارت خارجہ میں بلا کر ان کو دعوت پر بلایا گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا، جس کے بعد ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان تھا کہ پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے جس نے جنگی حالات میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پاکستان نے دوستو کس طرح مدد کی، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں پاکستان نے 3-4 طرح سے ایران کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، جس میں سب سے پہلے تو دوستو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح کہ ایران کے اوپر جو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، جو میزائل اٹیک ہو رہے تھے اور جو سائبر حملے ہو رہے تھے، ان سائبر حملوں اور ڈرونز کی جو نقل و حرکت تھی اس کو خفیہ معلومات پاکستان نے ایران کو پرووائڈ کی۔ خاص طور پر بلوچستان اور اعلانی بارڈر پر ہونے والی نقل و حرکت تھی، اس پر پاکستان لگاتار نگاہ رکھے ہوئے تھا اور پل پل کی خبریں جو تھیں پاکستان ایران کو
प्रोवाइड कर रहा था। इसके साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ईरान को पाकिस्तान ने वो भी प्रोवाइड की। पाकिस्तान ने अपने अंदर मौजूद जो नेटवर्क्स हैं जिनका ईरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके जरिए ईरान को तनहा नहीं छोड़ा और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसमें फनी पुर्जाजात और सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स है वो ईरान को प्रोवाइड की। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सफारती तौर पर ईरान की मदद की। और दोस्तों जब जंग ये चली तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के लिए करारदाद पास करवाई गई कि हम इसराइल के बेरहमाना और जारहियत पसंदाना इस हमले की ईरान के ऊपर जो हुआ है उसकी पुरजोर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आलमी दुनिया से गुजारिश करते हैं कि इस जंग को फिलफौर बंद करवाया जाए। और पाकिस्तान हर लम्हा हर स्टेप के ऊपर अपने बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो दोस्तों ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी फतह थी ईरान की कि उसका पड़ोसी और इस्लामी मुल्क पाकिस्तान उसके साथ इस जंग में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और इसके साथ साथ दोस्तों ईरानी सफारतकार का बयान भी आया। पाकिस्तान में मुकीम ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम है जिन्होंने एक निजी महफिल में और पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स में आकर कहा कि पाकिस्तान और ईरान का खुफिया तामर रहा इस जंग में मगर और ये बहुत गहरा ताल्लुक था और ईरान जानता है कि उसके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन हैं और हम पाकिस्तानी कौम के बेहद शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों इस बयान जो पाकिस्तान में ईरानी सफीर का था पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान के शुक्रिया में, और इसके बाद जब वजारत खारजा जो ईरान की है उसने पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर शुक्रिया अदा किया, तो उसके बाद दोस्तों ईरान के मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के शुक्रिया के जज्बात भरे मोहब्बत भरे ट्रेंड चलने लगे। और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस हद तक और इतना गहरा ताल्लुक जो ईरान के साथ है मुस्लिम ब्रदर होते हुए इस हद तक सपोर्ट तो की ना कि ईरान के पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे। और ये किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से लगने वाले अजीम तरीन वो जज्बात थे वो नारे थे जो बता रहे थे कि हम अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से हमारे साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़े होने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का मुकाम है कि हमने इस जंग में अपने उस दोस्त का साथ दिया, उस हमसाये का साथ दिया, उस ब्रदर इस्लामी मुल्क का साथ दिया जो हक के ऊपर खड़ा था, जो सच के साथ खड़ा था और जिसके ऊपर नहित्ते लोगों के ऊपर हमला किया गया और जारहियत दिखाई गई सहूनी कुव्वतों और इसराइल की तरफ से। तो इसमें भी पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है और पाकिस्तान का ईरान के दिल में जो मोहब्बत और प्यार था वो पहले से ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों हम आलमी रद्द-ए-अमल की भी बात करना चाहते हैं। इस जंग में खास तौर पे जब पाकिस्तान का खुफिया किरदार था कि हम पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हम अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं, कैटेगोरिकली खड़े हैं, दुनिया के सामने खड़े हैं। तो इसराइली जो एजेंसियां थीं और इसराइली जो सफारतकार थे और इसराइली डिप्लोमेट्स जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी हैं, उनके यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स भी हैं और जो आजकल मौजूदा गवर्नमेंट में मौजूद हैं, वो यहां तक कहते रहे ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा। तो दोस्तों खुद सोचें कि हमारी इसराइल के साथ जो हमारी कायद आज़म हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग है कि हम इसराइल को नाजायज रियासत तस्वर करते हैं। उन्होंने फलस्तीनियों का हक मारा और उनकी सरजमीन पे कब्जा किया है और उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और उस तशद्दुद में लाखों फलस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग में शहादत दे चुके हैं। तो इस जंग में जब हमने ईरान का साथ दिया तो जाहिर बात है दोस्तों सहूनी आलमी कुव्वतों को तकलीफ तो पहुंचनी थी। फिर ये ऐलानात किए गए कि हम पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करेंगे और ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो पाकिस्तान है। तो दोस्तों ये थी मदद जो पाकिस्तान ने ईरान को मुहैया की, जिसकी वजह से दुश्मन ममालिक की भी चीखें निकलने लगी। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आलमी कुव्वतें जो हैं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक वो भी परेशान थे कि इस जंग में क्या पाकिस्तान खम ठोक के खुफिया तौर पे ईरान के साथ खड़ा है और वो क्या कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वाशिंगटन में बुलाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खाने की दावत दी और 2 से 2.5 घंटे तक जो तफसीली मुलाकात थी उसमें डेफिनेटली मशरिक वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल जंग और उसके बाद पोस्ट वार जो सूरत हाल है उसके बारे में
एनालिसिस किया गया, डिस्कशन की गई और ये सोचा और समझा गया कि पाकिस्तान की क्या पल्स क्या कहती है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान के क्या अज़ाइम है, क्या पाकिस्तान हमारे साथ हमारा इत्तेहादी बन के हमारा साथ देगा या वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी वजारत खारजा से लेके, हमारे वजीर आज़म हाउस से लेके, हमारे प्रेसिडेंट हाउस से लेके, हमारी तमाम अफवाज पाकिस्तान के सिपह सालार से लेके और हमारे मुहिब वतन शहरियों से लेके तमाम लोगों का मुतफिका फीलिंग थी, जज्बात थे, ऐलान था कि हम इस जंग में अपने पड़ोसी मुल्क ईरान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे और हम इसराइल के खिलाफ और ईरान के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सफारतकार का मैं आपको मौक़िफ़ भी बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत इस पूरे वाक़े पर खामोशी से देखती रही कि क्या हो रहा है, लेकिन हम सपोर्ट तो ईरान को कर रहे थे ना। लेकिन जब हमारे वजारत खारजा के तर्जुमान से पूछा गया तो उनका कहना था कि पाकिस्तान इस खत्ते में अमन चाहता है और हम हर किस्म की कशीदगी से दूर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस खामोश बयान में भी बहुत कुछ छुपा हुआ था कि हम ऑफ द रिकॉर्ड अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं और उनके शहरियों के साथ खड़े हैं और इसराइल के जालमाना अटैक की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो दोस्तों, इस जंग में, ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? दोस्तों, ईरान इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमारी सरहदें लगती हैं, लेकिन हमारी ईरान के साथ ट्रेडिशनली कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो बलूचिस्तान सूबे में जो BLA और दूसरी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं, हमें शुबा है कि वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के बाद अफगानिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ छुप जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ईरान की रहती है, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की समटाइम होती रहती है। लेकिन इस जंग में जिस हद तक पाकिस्तान ने साथ दिया है, ईरान हमेशा इस साथ को याद रखेगा कि इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने जिस तरह सामने आकर ईरान के साथ सपोर्ट का ऐलान किया और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, इसको दहाइयों तक ईरानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। और इससे बेनिफिट ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता में एक बहुत अहम प्लेयर है ईरान, और ईरान में आप जानते हैं शिया कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी रहती है। तो लोगों का ये ख्याल है कि शिया और सुन्नी आपस में लड़ेंगे और उनके दरमियान चपकलिशें होंगे, लेकिन इस जंग के बाद ये भी साबित हो गया कि शिया और सुन्नी जो हैं, दोनों स्टेट्स हैं, आपस में इकट्ठी खड़ी हैं, आपस में भाई हैं और एक दूसरे के साथ फुल कोऑपरेट करके आगे चलेंगी। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर हैं और जनूबी एशिया की हम एक बड़ी ताकत हैं और ईरान मशरिक़ वस्ता के एक अहम खिलाड़ी है। तो पाकिस्तान जनूबी एशिया का अहम खिलाड़ी होते हुए, अहम ताकत होते हुए, अपनी ईरान के साथ टाइज को, अपने रवाबिस को, अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स को मजीद मजबूत किया है। तो दुनिया को यह भी खतरा है कि कहीं आने वाले दिनों में ये कोई इस्लामिक ब्लॉक तो नहीं बनने जा रहा जिसमें पाकिस्तान शामिल हो, ईरान शामिल हो, तुर्की और दूसरे इस्लामी ममालिक शामिल हो। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ईरान की पाकिस्तान ने इस तरह मदद करके क्या मगरबी दुनिया, अमेरिका, कुछ और ममालिक जिनकी नज़र में पाकिस्तान खटकता है, क्या उनको अपने खिलाफ तो नहीं कर लिया? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक मूव दुरुस्त सिमत में थी या इसको आप कुछ और नाम देते हैं? और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना पैगाम लाजमी दीजिएगा कि आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।